اسلامی کسی کیس کو جب لیتی ہے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے اسے منطقی انجام تک پہنچاتی ہے. یہ ہمارا ماضی گواہ ہے، خواہ اس کے کچھ بھی نتائج ہوں. اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ آئینی حدود میں رہ کے، دستوری حدود میں رہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں، کوئی پتھر نہیں مارا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پورا من احتجاج ریکارڈ کروانے کا حق رکھتے ہیں. اور اگر انتظامیہ ہمیں روکے گی تو جماعت اسلامی صرف بہاولپور کے اندر نہیں ہے، پاکستان کے اندر بھی ہے. اور اب ہمارا جو امیر جماعت ہے وہ ایک انقلابی امیر ہے، اور وہ یہ دیکھے گا کہ اچ شریف کی ایک بچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو یہاں آکے انشاءاللہ کھڑا ہوگا اور پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم اپنے ان شہید آرمی آفیسرز کے لیے دعائے مغفرت کر لیں جو کل چلاس کے اندر ہیلی کاپٹر گرا ہے، اور وہاں پر ہمارے بہاولپور کے ایک سپوت جو ہیں وہ بھی اس کے اندر جام شہادت نوش کر گئے. جب تک جنریٹر چلتا ہے تو ہم دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں سب سے پہلے اپنے صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس اہم پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور خصوصاً بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہاولپور پریس کلب کا کہ جنہوں نے اس پریس کلب کے اندر ہمیں اس حق کی آواز اٹھانے کی اجازت بھی دی. اور میں تحسین بھی کروں گا کہ جو گزشتہ دنوں سانحہ اچ شریف ہوا ہے، جس میں موضع محمد پور اچ شریف میں ایک فیملی کے ساتھ ظلم کہ وہ پہاڑ توڑے گئے، کہ جس کی ایکسپوئر جو ہے وہ ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چلی. 10 اگست کو ان کے گھر کے اوپر پولیس کا ایک دھاوا بولا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے خواتین اور بچیوں کو گھسیٹ کر تھانے لایا جاتا ہے، اور نہ صرف تھانے لایا جاتا ہے، تشدد کا نشان بھی بنایا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے. اور پھر 780A دہشت گردی کی ایکٹ ان کے اوپر لگا دی جاتی ہے. اس حوالے سے میں نے گزشتہ دنوں خود اچ شریف جا کر مختلف ذرائع سے، نیوٹرل ذرائع سے سارے معاملے کی چھان بین کی، تحقیق کی. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو لواحقین متاثرہ خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان سے میری ملاقات، یعنی جو شفیق ہے اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی جو نامزد ہے اس پرچے کے اندر، اور اس بچی کا والد ہے کہ جو جیل کے اندر ہے. لیکن میں نے اپنے ذرائع سے کچھ معلومات لی جو میں آپ کے سامنے ان حقائق کو رکھنا چاہتا ہوں. اس میں ایسا ہے کہ موضع محمد پور اچ شریف میں ان کا ایک رقبہ ہے وہاں پر، اور یہ وہاں پہ تقریباً 60 سالوں سے مقیم ہے. کوئی 33 کنال سم تھنگ ان کی جو مرلے ہیں جگہ وہاں پر موجود ہے. اب وہ جگہ جو ہے سی پیک کے بالکل متصل ہو گئی ہے، یعنی سی پیک وہاں سے گزر رہا ہے. سی پیک آنے کی وجہ سے
जगह की जो वैल्यू है वो 100 गुना बढ़ गई, जिसकी वजह से जिनसे इन्होंने कुछ जगह परचेज भी की थी, ख्वाजा मुरीद हुसैन और उनके दामाद ख्वाजा निसार, उन्होंने आज से कुछ अरसा कबल एक खाता मुश्तरका के अंदर यकतरफा वंडा डलवाकर मिली भगत के साथ इनको इनके मकानों से, घरों से बेदखल कर दिया, मकानों को मिसमार कर दिया और बिल्कुल, यानी वहाँ छोटी सी एक मस्जिद भी बनी हुई थी, दरख्त भी मौजूद था, बिल्कुल उसको ग्राउंड लेवल के ऊपर ले आए और वहाँ पर अपना एक पेट्रोल पंप लगाया। अच्छा, फिर उसके बाद ये वजह तनाज़ा शुरू हो गई और उसके बाद उन्होंने रेवेन्यू के अंदर भी और पुलिस के अंदर भी अपना असर सुख इस्तेमाल करके इस फैमिली को दबाना शुरू किया। इन्होंने अपने दिफा के लिए महकमा रेवेन्यू के अंदर केस पुटअप किया और मामलात जो हैं वो लिटिगेशन के अंदर हैं। अच्छा, अब वो ये चाहते हैं कि उनके पेट्रोल पंप के साथ मुल्का जो दूसरी जगह है जहां अब इन्होंने मकान बनाया और ये बैठे हुए हैं, वहां पर वो कोई बस टर्मिनल बनाना चाहते हैं और उसकी वैल्यू बड़ी है, लिहाजा वो उस जगह को हथियाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हुए इनको वहाँ से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके अंदर ये 2019 से ये जो फौजदारी मुकदमात इनके ऊपर दर्ज करवाना शुरू किए और एक प्रोपेगेशन ये है कि ये लोग क्रिमिनल हैं, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत सी FIRs दर्ज हैं और आज महकमा पुलिस SP इन्वेस्टिगेशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि ये क्रिमिनल हैं और इनके ऊपर मुताद्दिद केसेस हैं। और जब वहाँ पर सहाफ़ी हजरात ने पूछा कि वो FIRs हमें दिखाएं तो उन्होंने कहा अच्छा जी वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं FIRs लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊँ कि इनके ऊपर पहला जो मुकदमा है वो 3/9/2019 को दर्ज हुआ, पहली FIR दर्ज हुई और ये ख्वाजा निसार का मुलाजिम था जिसके जरिए इनके ऊपर एक झूठी FIR दर्ज करवाई गई। और उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने उसको फेस किया, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बरी हो गए। यानी पहली FIR 2019 में उसके अंदर ये बरी हो गए। फिर दूसरी FIR इनके ऊपर जो करवाई गई वो 2023 के अंदर करवाई गई। ख्वाजा मुरीद हुसैन साहब के एक मुलाजिम है, अलीपुर से उसका ताल्लुक है, क्योंकि वो बड़े जिम्मेदार हैं, बासर लोग हैं, ना सिर्फ पेट्रोल पंप के मालिक हैं, जिम्मेदार हैं, बल्कि कंपनियां भी उनकी हैं और अरबोंपति हैं। उनका एक मुलाजिम था, उसके ज़रिए इनके ऊपर एक झूठी FIR दूसरी दर्ज करवाई गई, जिसको इन्होंने फेस किया, डिफेंड किया और उसके बाद उसके अंदर भी ये बरी हो गए। ये दूसरी FIR भी ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। उसके बाद फिर तीसरी FIR इनके ऊपर ये 16/5/2024 को करवाई गई। ये ख्वाजा मुरीद हुसैन साहब ने खुद करवाई इनके ऊपर। अच्छा, उसके अंदर भी इन्होंने फेस किया और झूठी FIR थी, उसके अंदर भी ये बरी हो गए और इन्होंने कैदोबंद की सऊबतें भी बर्दाश्त की सारे प्रोसेस से होते हुए, यानी लेकिन ये अजीमत का पहाड़ बने रहे। ये 3 FIR हो गई। फिर चौथी FIR जो है ये इन पे करवाई गई 6/6/2024 को। ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ये महकमा जंगलात से मिली भगत करके करवाई गई कि इन्होंने एक दरख्त को आग लगा दी और इन पे पर्चा करवा दिया गया, जिसके ऊपर ये बताते हैं कि पहली FIR जो हुई थी, मुकदमा हुआ था, ये अभी जेल के अंदर थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन झूठी होने के ऊपर ये FIR भी खारिज हो गई। ये मेरे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है। और उसके बाद अब ये इसके अलावा एक और FIR है जिसके अंदर चोरी का इनके ऊपर डाला गया, मुकदमा डाला गया, उसके अंदर ये जो है चालान हुए। और इसके बाद फिर ये जो आखिरी ये जो नहीं बल्कि ये 5वीं FIR जो है वो इन्होंने एहतजाज किया जब वो कब्जा करने के लिए आए थे, रोड के ऊपर खड़े होकर एहतजाज किया और पुलिस मुद्दाई बनी और इनके ऊपर FIR दे दी, जिसके अंदर ये चालान हुए। और मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तबस्सुत से ये भी बता रहा हूँ कि मैं इनके साथ खड़ा होकर एहतजाज करूंगा उसी रोड पे, फिर मैं देखता हूँ कि FIR आप कैसे देते हैं ना जी। और छठी FIR इनके ऊपर ये जो FIR है,
मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूं कि ये 10 तारीख को इनके जो मर्द हैं वो घर पे मौजूद नहीं थे, पुलिस ने इनके घर पे धावा बोला। उसकी क्या डिटेल्स हैं वो आप उधर से सुन के आए होंगे, थोड़ी सी डिटेल मैं भी आपको बताता हूं। जब पुलिस वहां पर इनके घर के ऊपर चढ़ दौड़ी तो इनकी घर की खवातीन भाग के, क्योंकि इनके घर के पिछला जो हिस्सा है वो जमीनों की तरफ जाता है, खेतों के अंदर छुप गई और इनकी 2 बच्चियां जो हैं वो छत पे चली गई। पुलिस ने खेतों के अंदर से, क्योंकि इस साइड पे सड़क है और सामने नहर है, इधर उनका अपना पेट्रोल पंप है जो मुद्दाई हजरात हैं, और पीछे खवातीन कितना भाग सकती हैं, खेतों से वहां से इनको घसीटते हुए लाए, तशद्दुद का निशाना बनाते हुए। फिर छत के ऊपर एक पुलिस वाला गया, उसके दिल में कोई रहम होगा, उसने देखा कि बच्चियां छुपी हुई हैं तो उसने इशारा किया कि छुपे रहो। तो ऐसे में थोड़ी देर में दूसरा एक पुलिस वाला उसके होते हुए ऊपर आ गया और उसने उनको बालों से पकड़ा और घसीटते हुए नीचे लाए। और मैंने खुद जाकर देखा इनके घर की जो टाइल्स हैं छतों की वो टूटी हुई हैं। अच्छा, अब ये जो FIR दी गई है इसके अंदर बाकी दफात के साथ 780A की दफा लगाई है। इसमें उन्होंने कहा है कि जी ये दहशतगर्दी का एक्ट है कि उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया और इलाके के अंदर खौफ व हिरास फैलाया और पुलिस वाला जख्मी हुआ। मैं इन तीनों बातों का आपको जवाब देना चाहता हूं। पहले नंबर पे तो ये है कि वहां पर तनहा इन्हीं का घर है, दाएं भी एक खाली रकबा है, बाएं पर सी पैक है और सामने सड़क और नहर है, उसके आगे उनका पेट्रोल पंप है। कोई मोहल्ले के अंदर नहीं है, उच्च शरीफ से निकल कर ये इलाका है। यानी आप किसी के घर के अंदर बदमस्त हाथियों की तरह चढ़ दौड़ें और जाकर खवातीन के ऊपर तशद्दुद करें और फिर आप कहें कि 780A भी इनके ऊपर लगती है। मैं ये समझता हूं कि 780A पुलिस के ऊपर, उस पार्टी के ऊपर लगनी चाहिए जिन्होंने इनके घर के अंदर जाके खौफ व हिरास फैलाया। कहते हैं जी इन्होंने हम पे पत्थर फेंके, हम पे मिर्चें फेंकी। अच्छा चले जी, अगर मान भी लिया जाए 1 मिनट के लिए, आपके घर के अंदर जब आप लेडीज पुलिस के बगैर, किसी वारंट के बगैर किसी के घर के अंदर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए जाएंगे तो कानून क्या कहता है कि वहां पर आप अपना दिफा नहीं करेंगे? फिर आपने उस रोड़े और बट्टे फेंकने को और खवातीन की उस रेजिस्टेंस को 780A दहशतगर्दी की एक्ट लगा दी। और फिर जुल्म की ये बात कि उन खवातीन के अंदर एक बच्ची जो 9th क्लास की स्टूडेंट है और जिसका रिजल्ट अभी आया है, वो पता चला है कि होनहार स्टूडेंट है और अपने स्कूल के अंदर डिबेटर भी है। अच्छा, उसके ऊपर भी इन्होंने वो अपनी तशद्दुद की कार्रवाई की, थाने में भी मारते पीटते रहे, खवातीन को थप्पड़ मारे, डंडे मारे, जो पुलिस का एक रिवायती तरीकाकार है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये खवातीन हैं, बच्चियां हैं। फिर इसी पर भी इक्तफा नहीं किया बल्कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल की सलाखों के अंदर पाबंद सलासल कर दी है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जी एक पुलिस वाला है जिसको इन्होंने शो किया है कि इसको जख्मी किया गया है, उसके सर के ऊपर डंडा लगाया, उसके दांत टूट गए हैं, उसका नाम शाहिद है। मैंने उसकी अपनी वाल से ये कुछ तस्वीरें ली हैं जी। ये पहले तो मैं ये दिखाऊं कि जिस पुलिस वाले पर हमला हुआ, ये देखें, ये उसकी तस्वीर है, यानी ये हमले के बाद की पुलिस ने खुद से बनाई है, ये देखिएगा। अच्छा, वो कहते हैं कि जी इसके फ्रंट के 2 दांत तोड़ दिए। आप इसके लिप्स देख लें, आप होंठ देख लें, 2 दांत तोड़वा के देखें जरा आप। आपने लिप्स ऊपर किए हैं और फिर इन्होंने मुक्का मारा है और फिर दांत तोड़ दिए। कोई करने वाली बात करें यार। अच्छा, उसके अपनी वाल से हमने ये ली कि जनाब उसका ये 19 जनवरी को उसकी अपनी फेसबुक पे लगी हुई है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और ये मेरे सामने के दांत टूट गए। ये वो हकायक हैं जो हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं। ये देखिए, ये टूटे हुए दांत लग रहे हैं, ये देखें। फिर वो खुद से दुआएं भी करवा रहा है लोगों से, जैसे जैसे वो रूबा सेहत हो रहा है वो दुआएं भी करवा रहा है कि जी मेरे लिए दुआ करें। ये उसकी अपनी, अगर उसने डेल कर दी हो तो आप फ्रेंजिंग करवाएं उसकी फेसबुक के ऊपर, ये चीजें मौजूद हैं या नहीं मौजूद। आपने वो टूटे हुए 2 दांत इनके ऊपर डाल दिए। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि शफीक, ये शख्स जो बैठा हुआ है, ये FIR के अंदर वो जिक्र करते हैं शफीक के बारे में कि इसने हम पे हमला किया। शफीक ने
शफीक जो है वो इकरा का वालिद है, इस बच्ची का वालिद है, और इसकी बीवी, इसकी बहन, इसकी भाभी जो पाबंद सलासल हैं, आप किसी सेंट्रल जेल के अंदर। आप इस बात पे टक लगा लें अगर शफीक मौके पर मौजूद हो, हम ना सिर्फ आपको इनको छोड़ देंगे बल्कि पुलिस के साथ आगे खड़े हो जाएंगे, और बल्कि मैं भी इनके साथ जुर्मदार हूंगा। ये शख्स कराची में मौजूद था, मेहनत मजदूरी करता था, और इसका CDR निकलवाया गया, और CDR इस बात का ऐनी शाहिद है कि ये कराची में मौजूद था। ये CDR की जनाब हमने ये रिकॉर्ड भी निकलवा लिए। आपको खुदा का खौफ करें, लोगों पर इतने जुल्म के पहाड़ ना तोड़ें कि फिर लोग बगावत की तरफ तुलाएं। और फिर वहां से इन्होंने वजीर आला कंप्लेंट सेल के अंदर भी शिकायत दर्ज करवाई कि मेरे घर के ऊपर पुलिस ने इस तरह से धावा बोला है और इस तरह से ज्यादती की है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सारा मामला क्या है, आप लोग समझ चुके होंगे। अच्छा, इनकी जो ज़मीनों के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी जो जायदाद के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल हमने जो सहाफ़ी हजरात ये रेवेन्यू की चीज़ों को टेक्निकली जानते हैं, उनको ये इन्होंने चेक करवाया है, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वाकई 33 कनाल 11 मरले जगह जो है ये वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उसके अंदर मुझे तो टेक्निकली ये बातें रेवेन्यू की नहीं पता, लेकिन मोटी मोटी बातें ये ज़रूर पता है कि अगर आप खाता मुश्तरका के अंदर भी बैठे हुए हो ना, ये अदालती फैसला है कि जो बंदा खाता मुश्तरका में जहाँ पर भी बैठा हुआ होगा वो उसका मालिक होगा, ना कि आप जाके खुफिया तौर पर वन साइडेडली आप कुछ ले दे करके। रेवेन्यू की करप्शन तो वैसे जुबान ज़दे आम है कि आप वंडा डलवा के फिर उनको बेदखल करने की वहाँ से कोशिश करें, और फिर जो वारंट कब्जा लेकर आए वो वारंट कब्जा किसी और खाते का और आगे उनका मकान मिसमार कर दें। यानी पहले वो मकान मिसमार कर दिए, उसको ज़मीन बोस कर दिया, अब जहाँ पर ये बैठे हुए हैं नए सिरे से वहाँ से भी इनको उठाना चाहते हैं। भाईजान, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर आइन और दस्तूर और कानून मौजूद है, और ये जो महकमे हैं हम इनके खिलाफ कोई बात नहीं करते, लेकिन महकमों के अंदर जो काली भेड़ें छुपी हुई हैं जो महकमों को बदनाम करती हैं, खा वो रेवेन्यू का महकमा हो, खा वो पुलिस का महकमा हो। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जो से मैं पुलिस के महकमे से भी, DPO बहावलपुर से, RPO बहावलपुर से भी, और हमारी CM मरियम नवाज साहिबा से भी, जो औरतों के हकूक की अलमबरदार हैं, आप देखिए आकर कि रियासत बहावलपुर के अंदर क्या जुल्म रवा रखा गया इन खवातीन के साथ, कि ये जो सामने बैठी हुई बच्चियां हैं, खवातीन हैं, इनकी बहन, इनकी माँ, इनकी बेटी जेल के अंदर पाबंद सलासल है, और दफ़ा भी उनके ऊपर 780A लगा दिया गया है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महकमा पुलिस की तरफ से, मैं ये समझ रहा था कि शायद हमारे हाई दुआई से कोई फ़र्क पड़ा हो। आप न्यूट्रल, RPO साहब न्यूट्रल इंक्वायरी करवाइए, हमारा यही मुतालबा है, हमारा कोई और मुतालबा नहीं है। अगर ज़मीन के मामलात के अंदर ये झूठे हैं, इट्स ओके, हमें कोई लेना देना भी नहीं है, रेवेन्यू जाने, मामलात जाने, लिटिगेशन जाने। लेकिन ये जो फौजदारी मुकदमा ये जो बनाया गया है, इससे पहले इन्होंने ये मुकदमात बर्दाश्त किए हैं। अच्छा, आप देखें 10 तारीख का वाक़या है, और आज 2 तारीख को जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अपनी वजाहत पेश कर रहा है। कितने दिन हो गए हैं जनाब? 31 का महीना था, आज 22-23 दिन हो गए हैं। हमारा कोई कानून ये नहीं कहता कि खवातीन को इतने अरसे तक जेल के अंदर रखा जाए, उनकी तो फौरन बेल होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और जो बात इन्होंने टेक्निकल डाली है, इनके ऊपर तो खुद 420 का पर्चा होना चाहिए। ये जो खवातीन हैं, कौन कौन सी खवातीन है जी जो अंदर हैं आपकी? एक तो बेटी इकरा शफीक है, और एक मेरी बेगम है, नाम बताए ना, आमना, एक आमना बीबी है, ठीक है, और एक मेरी बहन है कुबरा बीबी, क्या नाम है जी? कुबरा बीबी, कुबरा बीबी, और जी? और एक मेरी भाभी है महनाज बानो। महनाज बानो, जी, ठीक है जी। कितने हो गए? 4। खवातीन। अच्छा, ये नाम क्या लिखते हैं जनाब? ये नाम लिखते हैं नसरीन बीबी, जो सिरे से मौजूद ही नहीं है। ये नाम लिखते हैं सोफिया बीबी, जो सिरे से मौजूद ही नहीं है। ये नाम लिखते हैं अफसाना बीबी, जो सिरे से मौजूद ही नहीं है। ये नाम लिखते हैं जरीना बीबी। को खुदा का खौफ करो अल्लाह के बंदे, क्या चाहते हो आप लोग? उनमें से किसी एक का नाम नहीं कहते जी, उन्होंने नाम गलत बताए। पुलिस के एक छित्तर से, एक थप्पड़ से अच्छा भला मर्द भी सच बोल देता है, ठीक है? आप इन खवातीन से मारपीट करने के बावजूद भी उनसे असल नाम भी नहीं उगलवा सके कि उनके असल नाम क्या थे।
اور یہ سارا لٹیگیشن چل رہا ہے. پھر یہ مدعیان جو 2019 سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, پرچے در پرچے کروائے ہیں, مردوں کو قید و بند کروایا. ان کا ایک بھائی آج یہاں پر آیا نہیں, میں تو چاہتا تھا کہ وہ یہاں پر آئے. وہ نہ صرف سرکاری ٹیچر رہا ہے بلکہ ایک بہت اچھا شاعر بھی ہے. میں نے اس کی خود حالت وہاں پر جا کر دیکھی اچ شریف کے اندر, کہ اس کے سر کے اندر زخم تھے, تشدد کے نشان تھے, اور وہ بندہ مینٹلی طور پہ پاگل ہو چکا ہے. یعنی اتنا اس کو تشدد کیا گیا. اس سے پہلے ان کا والد جو ہے غلام علی, وہ یہ لیٹیگیشن بھگتتا رہا. اب ان کی یہ فیملی بھگت رہی ہے. آپ لوگوں کا پانی کے اندر گھر نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی میں بحیثیت امیر جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ بہاولپور, میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ظالم کا ہاتھ مروڑا ہے. اور یہ صرف بھائیو جماعت اسلامی کا کیس نہیں ہے, یہ پوری سول سوسائٹی نیٹ ورک کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. میں اپنے صحافی بھائیوں سے یہ پوچھتا ہوں, میری اپنی بیٹی بھی ایک 9th کے اندر پڑھتی ہے, ہماری بیٹیاں سکولوں کے اندر پڑھتی ہیں, کالجز کے اندر پڑھتی ہیں. اگر ہماری بیٹی کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے تو ہم اس کے چاہتے ہیں کہ اس کی انگلی کاٹ دی جائے, اور اس کی طرف اگر کوئی دیکھے بھی صحیح تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں نکال دی جائیں. اور آپ کی بیٹی کو آپ کے گھر سے گھسیٹتے ہوئے تھانے کے اندر لے جایا جائے اور وہاں پر مار پیٹ کی جائے. میں کہتا ہوں جی ایک تھپڑ بھی اگر لگے اس بیٹی کو, یہ تھپڑ ہمارے منہ کے اوپر لگا ہے, یہ پوری قوم کے اوپر لگا ہے, اور یہ سی ایم صاحبہ کے اس ویژن کے اوپر لگا ہے کہ جو خواتین کے حقوق کی علمبردار ہے. اور اس کے پیچھے کہانی اور بھی سنیے. محکمے کے اندر ایک بھائی صاحب ایس ایچ او تھے مسلم ضیاء صاحب, وہ ٹوٹلی طور پہ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں. اور اخبارات کے اندر میں نے پڑھا کہ 15 سے پہلے انہوں نے کال کی کہ جناب میرے رقبے پر قبضہ ہو رہا ہے, آپ کا رقبہ کیسے ہو گیا؟ تو پتہ چلا ہے کہ جب وہ ایس ایچ او تھے تو گھوس کے طور پہ آپ کو وہاں پر دکان دینے کا وعدہ کیا گیا ہے, 1 یا 2. یہ معلومات ہمیں اخبارات سے ملا ہے, میڈیا سے ملی ہیں. اور اب جو موجودہ ایس ایچ او سجاد سندھو صاحب بیٹھے ہیں, سجاد سندھو صاحب آپ پبلک سرونٹ ہیں. یہ جو پھول آپ نے اپنے کندھوں پہ سجائے ہوئے ہیں نا, یہ لوگوں کی حفاظت کے لیے سجائے ہوئے ہیں, یہ اس لیے نہیں سجائے ہوئے کہ آپ خود سے دہشت گردی کرتے پھریں. یہ جو واقعہ آپ نے کیا ہے, یہ 2019 سے جتنی ایف آئی آر چلی وہ اس فیملی نے بھی برداشت کر لی ہیں اور چل رہی ہیں, لیکن اب آپ نے غلط شاٹ کھیل دی ہے. میں انشاءاللہ آج کی اس پریس کانفرنس کے توسط سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم اس کا پورا ایک لے آؤٹ بنائیں گے, پلان بنائیں گے. مدعی حضرات بہت ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ ہم سے بھی ملے, میں آج ان سے ملوں گا, ان کا میں موقف لوں گا, کسی غلط سائٹ کے اوپر ہم کھڑے نہیں ہوں گے. اور جب معلوم ہوا کہ یہ رانگ سائٹ پہ ہم 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے, سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے. لیکن اگر ہمیں یہ یقین رہا کہ یہ مظلوم ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم ان کو منطقی, اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے, خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے. میں بہاولپور شہر کے اندر میں دستخطی مہم چلواؤں گا. یہ جو 10 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے, میں یہاں پر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو دعوت دوں گا. میں آل پارٹیز کانفرنس کروں گا, اس کے اندر یہ سارا ڈیٹا کے ساتھ یہ ساری بریفنگ میں ان کو دوں گا کہ یہ ظلم اور زیادتی کے خلاف ہمیں بلا تخصیص کسی پارٹی سے ہمارا تعلق ہے, کسی مکتبہ فکر سے ہمارا تعلق ہے. بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, خواتین سب کے لیے محترم ہوتی ہیں. انشاءاللہ یہ جنگ ہم لڑیں گے. اور اچ شریف کے اندر بھی انشاءاللہ آج ہم ہمارے جو کمیٹی ہے ہماری جو ذمہ داران کی, اس میں سے یہ تمام پورا لے آؤٹ کر کے اور ہم میڈیا کے توسط سے آپ تک پہنچائیں گے اور اس کیس کو لے کر چلیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ غریب لوگ ہیں, یہ مظلوم لوگ ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے پریشر کے تحت آ کے, مجھے تو آج یہ بھی خدشہ تھا کہ شاید یہ پریس کانفرنس کے اندر بھی نہیں آئیں گے, لیکن میں نے یہ سوچا ہے کوئی چلے نہ چلے میں اکیلا ضرور چلوں گا انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی لیمٹس میں رہتے ہوئے, قانونی, آئینی, دستوری لیمٹس کے اندر رہتے ہوئے پرامن طور پہ انشاءاللہ تعالی ہم احتجاج بھی کریں گے. حکام بالا کو یہ بتائیں گے بھی صحیح کہ جناب یہ زیادتی ہو رہی ہے, آپ فری اینڈ فیئر اور نیوٹرل انکوائری کروائیں, ہمارا کوئی اور بڑا مطالبہ نہیں ہے. اور اس کیس کے اندر یہ جو بے گناہ لوگ ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہ 10 تاریخ کا واقعہ ہے, ابھی تک تو کوئی بھی نہیں بولا تھا, 20-22 دن. میں اپریشیٹ کرتا ہوں میڈیا کے لوگوں کو کہ یہ جو صحافتی ادارہ ہے یہ واقعی ہمارے اسٹیٹ کا ایک ستون ہے. ان کے توسط سے مجھے معلوم ہوا کہ اچ شریف کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے, وہ بڑے لوگ ہیں, جاگیردار ہیں, روب اور دبدبے والے ہیں, کوئی ان کے سامنے بولتا نہیں ہے. لیکن جب میں وہاں پر گیا, معلومات لیں اور ان کے گھر میں جا کے ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا تو الحمدللہ
लाखों की तादाद के अंदर ये जो अभी फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, आप एक एक बंदे के डैशबोर्ड खोल के देख लें कि लाखों की तादाद के अंदर जो है लोगों ने इस चीज को देखा भी है और इस चीज के ऊपर दुख का इजहार भी किया है। ये भावलपुर डिस्ट्रिक्ट जो 50 लाख आबादी का जो जिला है, मैं ये समझता हूं कि ये इन तमाम लोगों तक कमोबेश ये बात पहुंच चुकी है और इंशाअल्लाह ताला लोगों के कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस जुल्म के अंदर हम इंशाअल्लाह मजलूम के साथ खड़े होंगे बिला तखसीस। ना यहाँ कोई पॉइंट स्कोरिंग है, ना यहाँ कोई सियासत हो रही है। इंशाअल्लाह ताला हम बहैसियत एक इंसान, बहैसियत एक पाकिस्तान, बहैसियत एक मुसलमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम के साथ जाके खड़े हो जाओ। उसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी के अंदर हम मजलूम के साथ खड़े हुए हैं। और मैं आखिरी बात ये करूं कि देखें, मैं यहाँ पर अभी तक डीपीओ साहब से नहीं मिला। डीपीओ साहब खुद पार्टी बने हुए हैं इसके अंदर। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एसपी साहब ने, मैं समझ रहा था कि शायद कोई रिलीफ की तरफ बात आ रही है, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ को एक फुसफुसे अंदाज के अंदर रख के कहा, नहीं जी ये बात जो हमने कर दी है वो बिल्कुल ठीक है, आपने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, मैं इसी यूनिवर्सिटी चौक पे भावलपुर के किसी जगह के ऊपर भी आप ले आए, रेवेन्यू के लोगों को भी ले आए, पुलिस के लोगों को भी ले आए, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहूंगा अपनी बेटी के चंद अल्फाज, ये उस इकरा बच्ची की बहन है, जस्टिस फॉर इकरा, इकरा को इंसाफ दो का स्लोगन ऐसे लेकर चलेंगे, बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर ये होगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी बात आगे आगे। अस्सलाम वालेकुम। इकरा शफीक मेरी बहन है। 10 अगस्त को उसे मैं और वो छत के ऊपर छुपी हुई थी। एक ऑफिसर आया, उसने देखा और वो नीचे उतर गया, और दूसरा आया, उसने मेरी बहन को बालों से पकड़ घसीट कर नीचे लेकर आया और उसे थाने में लेकर गए, बाकी खवातीन को भी और मेरी बहन को भी। और मेरी बहन जिसके गुर्दे में पत्थरी है और वो पत्थरी की मरीज है, इतनी उसकी हालत भी नहीं है जितना उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि आप सब हमारा साथ दें और हमें इंसाफ दिला कर दें। हम मजलूम हैं, हमें इंसाफ दिला कर दें। अच्छा जी, इनके घर का सामान भी ले गए, ट्रैक्टर ले गए, शरीफ रिहायशियाँ साढ़े उते इतनी जुल्म थे जो असां सारा जीवन औखा काटे थे। थाने ओ शरीफ पुलिस ने जो मेहरबानी है जमात इस्लामी दी जो असाडा घर आए, असाडा मौका दिठे ने, असाडे हकम सां को पुछे ने जो भाई इन्हें का क्या मामला है। इन्हें आखे ए मजलूम हैं, इतने साल 2019 तो इन्हें तो थे ख्वाजा साहिबान, ख्वाजा मुरीद सन जुल्म करेंदा पे, एक FIR तो निकलते नहीं, बई करा देंदे, बई तो निकलते नहीं, बई करा देंदे। साढ़े उते 7वीं FIR करा जरी सरासर झूठी है, जरी सरासर झूठी है और ये FIR दहशतगर्दी दी रीती है। मैं FIR दे विच कराची हूँ। पक्की गाल जी बिल्कुल पक्की गाल है। साबित थी कि तुसां आवे वन सर जो जुर्म लगा पे मैं भुगतन को तैयार हाँ। जो जुर्म लगा पे दहशतगर्दी का, मैं को शरियाम चौक ते खड़ा ते गोली मार देन जो भाई तू FIR दे विच आवें, तू मुजरिम ही, तू ते ए सजा तू भुगत, मैं मेरा दम हाजिर है। अगर ही FIR दे विच कोई बंदा आग देवे मेरे इलाके का या CDR गलत बोले तो मैं मुजरिम। क्या मुतालबा है सर 33 इंदे खिलाफ जरा ना जो साढ़े उते प्रोपगंडा बने दे खड़े 2019 तो सारी जमीन खसन की खातिर 33 कनाल 11 मरले दे असा खाता नंबर 261 दे विच मालिक से वो सबको अपने रकबे तो बेदखल करना चाहने जो भाई हुण उन्हें इो जी FIR दी है जो घर बनते ने सारे को मार लियो, असा जरा ना रकबा काबिज थी वञूं।